کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مرشد آباد میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر نکتہ چینی کی۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر بیرسٹر اسدالدین اویسی پارٹی کے امیدواروں کی تائید میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ انہوں نے ضلع مرشد آباد کے حلقہ انتخاب رگھوناتھ گنج میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی پر نکتہ چینی کی۔ بیرسٹر اویسی نے ممتا بنرجی کے بی جے پی کے ساتھ ماضی کے تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے سنگین سوالات اٹھائے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین نے عوام کو یاد دلایا کہ ایک وقت تھا جب ممتا بنرجی بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے حکومت میں شامل تھی۔ ممتا بنرجی بی جے پی دور میں ریلوے وزیر تھی اور 2003 میں بھی انہیں بی جے پی کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اویسی نے گجرات فسادات کا ذکر کرتے ہوئے ممتا بنرجی کی خاموشی پر سوال اٹھائے۔ انہوں نے پوچھا کہ جب گجرات میں ہزاروں مسلمان ریلیف کیمپس میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے تب ممتا بنرجی بی جے پی کے ساتھ کیا کر رہی تھی۔ بیرسٹر اویسی نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ سیکولرزم کا دم بھرنے والی جماعتیں صرف مسلمانوں کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ جب مسلمانوں پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ سیاسی قائدین اقتدار کی خاطر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ بتاؤ آپ ہم کو گالی دیتی ہے، یہی ممتا بنرجی بی جے پی کی سرکار میں ریلوے منتری تھی، آج ٹی ایم سی کے لوگ اویسی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ بتاؤ تم نے کھل کے ساتھ دیا، پھر ممتا بنرجی نے استعفیٰ دے دیا، پھر 2003 میں پھر سے بی جے پی میں ان کو سپورٹ کر دیا اور گجرات کا فساد ہوا، ہزاروں مسلمان ریلیف اور ریفیوجی کیمپ میں جا کر زندگی گزار رہے تھے۔ جو لوگ پوچھتے ہیں اویسی تم آ کر ووٹ کاٹنا چاہتے ہو، ارے میں گجرات کے 2002 کے ریلیف کیمپوں میں وہاں پر 10 دن تک کام کیا، شالم ریفیوجی کیمپ میں، وٹوا میں، جوہا پورا میں مجلس جا کر کام کی۔ ٹی پی سی سی کے کارگزار صدر جگا ریڈی نے سنگاریڈی قصبے میں زیر تعمیر بی سی گرلز ہاسٹل کا اچانک دورہ کرتے ہوئے تعمیراتی معیار اور طلبہ کے لیے فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سنگاریڈی کے سابق ایم ایل اے جگا ریڈی نے رات دیر گئے اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی کاموں کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے لڑکیوں کے لیے بنائے جا رہے ہاسٹل کی عمارت پہنچ کر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے تفصیلات حاصل کی۔ جگا ریڈی نے عمارت کے ڈیزائن، کمروں کی کشادگی اور انہیں ہوادار بنانے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ طالبات کے آرام اور پڑھائی کے لیے موزوں رہیں گے۔ دریں اثنا سابق رکن اسمبلی نے موجودہ افسران کو واضح ہدایت دی کہ سنگاریڈی حلقے میں آئندہ جتنے بھی ہاسٹل تعمیر کیے جائیں ان کا نقشہ اور معیار اسی عمارت کی طرز پر ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کا مقصد طلبہ کو گھر جیسا ماحول فراہم کرنا ہے تاکہ وہ کسی بھی پریشانی کے بغیر اپنی تعلیم پر توجہ دے سکے۔ شہر حیدرآباد کے علاقے نارائن گوڑا میں واقع ایک آئی اے ایس کوچنگ سینٹر میں آگ لگ گئی۔ آج صبح ہونے والے اس واقعے نے علاقے میں کھلبلی مچا دی۔ ذرائع نے بتایا کہ نارائن گوڑا علاقے میں ایک آئی اے ایس کوچنگ سینٹر میں پیر کی صبح اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد علاقے میں کھلبلی مچ گئی۔ کوچنگ سینٹر کی تیسری منزل سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے گئے۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی عمارت میں موجود طلبہ اور عملے میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی جانیں بچانے کے لیے باہر کی سمت بھاگے۔ بشیر آباد فائر اسٹیشن سے فائر ٹینڈرز نے جائے وقوع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا اور اسے عمارت کی دیگر منزلوں اور قریبی رہائشی علاقوں میں پھیلنے سے روک دیا۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے، تمام افراد محفوظ ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کی ہے۔ جوائنٹ سی پی ٹریفک جوئل ڈیوس نے روڈ سیفٹی منتھ کے سلسلے میں میٹرو 3 انجینئرنگ کالج میں قومی شاہراہ تحفظ بیداری مہم کا آغاز کیا۔ کہا سڑک حادثات کوئی اتفاق نہیں بلکہ اکثر ہماری لاپرواہی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اگر عوام خاص طور پر نوجوان ٹریفک قوانین پر عمل کرے تو حادثات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔
मित्रश्री इंजीनियरिंग कॉलेज के अहाते में कौमी शाहराह तहफ़्फ़ुज़ माह का बाकायदा आगाज़ किया गया। इसका मकसद नौजवान नस्ल बिलखुसूस तलबा में जिम्मेदाराना ड्राइविंग और ट्रैफिक ज़वाबित की अहमियत को उजागर करना था। इस प्रोग्राम में जॉइंट सीपी ट्रैफिक जोएल डेविस ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जॉइंट सीपी ट्रैफिक ने सड़क हादसात की बढ़ती हुई शरह पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने नौजवानों को मुखातिब करते हुए उन्हें हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करने, शराब पीकर गाड़ियां चलाने से गुरेज करने का मशवरा दिया। जोएल डेविस ने कहा कि सड़क हादसात कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि अक्सर हमारी लापरवाही का नतीजा होते हैं। अगर अवाम, खासतौर पर नौजवान, ट्रैफिक क़वानीन पर सख्ती से अमल करें तो हादसात में नुमाया कमी लाई जा सकती है। हम सबको एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना चाहिए। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तमाम तलबा, असातिज़ा और पुलिस अफसरान ने मिलकर रोड सेफ्टी का हलफ लिया। शुरका ने अहद किया कि वो न सिर्फ खुद ट्रैफिक क़वानीन की पासदारी करेंगे, बल्कि दूसरों में भी इस सिलसिले में शऊर बेदार करेंगे। शहर हैदराबाद के इलाके रेड हिल्स में एक रिहायशी इमारत में खौफनाक आग लग गई। आतिश पर हमले की बरवक्त कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा टाल दिया। नामपल्ली के रेड हिल्स इलाके में उस वक्त खौफ व हरास फैल गया जब एक रिहायशी इमारत की तीसरी मंजिल से आग की लपटें और गहरा काला धुआं निकलते देखा गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। धुएं के बादल इस कदर घने थे कि करीबी इमारतों में रहने वाले लोग भी खौफजदा होकर सड़कों पर निकल आए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर आतिश पर हमले को इत्तला दी। फायर सर्विस के अमले ने जान की बाजी लगाकर इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे 23 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाला गया। खुशकिस्मती से इस वाक़े में किसी भी जानी नुकसान की या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। फायर डिपार्टमेंट के हुकाम का कहना है कि आग तीसरी मंजिल तक ही महदूद रही और उसे दीगर मंजिलों तक फैलने से पहले ही बुझा दिया गया। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो आग पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले सकती थी। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ ने सिद्धापुर रिजर्वायर को फंड्स जारी करने के हवाले से साबिक असेंबली स्पीकर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से किए गए तबसरे पर वाज़ेह किया कि मौजूदा हालात के पेश नज़र हुकूमत रिजर्वायर के लिए फंड्स फराहम नहीं कर सकती। सिद्धापुर रिजर्वायर के लिए फंड्स की अदम मंजूरी के हवाले से साबिक स्पीकर व सीनियर लीडर पोचारम श्रीनिवास रेड्डी के हालिया तबसरों पर टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह कहा कि मौजूदा हालात के पेश नज़र इस वक्त रिजर्वायर के लिए फंड्स फराहम करना मुमकिन नहीं है। टीपीसीसी के सरबराह का कहना था कि हुकूमत रियासत की माली सूरत हाल और तरजीहात को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से ये गुजारिश करते हैं कि वो एक सीनियर सियासतदान हैं और मौजूदा सूरत हाल को उन्हें समझने की कोशिश करना चाहिए। आपको याद दिला दें कि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी हाल ही में बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने हल्के इंतखाब में सिद्धापुर रिजर्वायर के मंसूबे के लिए फंड्स की फराहमी का मुतालबा किया था। फंड्स की मंजूरी में ताख़ीर पर उन्होंने तशवीश जाहिर की, जिस पर टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ का ये बयान सामने आया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैर मामूली बारिश के बाद बड़े पैमाने पर तबाही मच गई। रियाज में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में गैर मामूली मौसमी तब्दीलियां देखी गई। सहराई खित्ता होने के बावजूद रियाज में होने वाली मूसलाधार बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। सड़कें तालाब बन गई। आमदोरफ्त का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। माहिरीन ने इस माहौलियाती तब्दीली को एक खतरनाक पेशगीमा करार दिया है। सहराई मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर बारिश के नतीजे में बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। शाहराहें पानी में डूब गई हैं और गाड़ियों की आमदरफ्त पर असर पड़ा है। सैकड़ों गाड़ियां सैलाबी रेलों में फंस गई है। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए सऊदी हुकूमत ने हंगामी इक़दाम किए। तलबा और अमले की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम स्कूलों, कॉलेजों और जामियात में तातील का ऐलान कर दिया गया। शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने और नशेबी इलाकों से दूर रहने की ताकीद की गई। आपको बता दें कि गैर मुतवक्का मौसमी सूरत हाल ने माहिरीन माहौलियात को गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। उनका कहना है कि अचानक आने वाले
सैलाब इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कुर्रे अर्ज के बढ़ते हुए दर्जे हरारत ने कुर्रे हवाई के तवाज़ुन को बिगाड़ दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस में देखा जा सकता है कि रियाज की जदीद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। महकमे शहरी दिफा की टीमें दिन रात इमदादी कामों में मसरूफ हैं ताकि पानी में फंसे हुए शहरियों को बचाया जा सके। हैदराबाद की पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में गुलकारा मंगली से मुताल्लिक एक मामले की पैरवी के लिए पहुंचे वकील का पुलिस ने अल्कोहल टेस्ट कर दिया। पुलिस के रवैये के खिलाफ वकील ने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में आज उस वक्त गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई जब एक वकील गुलकारा मंगनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाले मुतासिरीन के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे। दौरान गुफ्तगू पुलिस एहलकारों ने शुबा जाहिर किया कि वकील ने शराब पी रखी है। बात यहां तक बढ़ी कि पुलिस ने थाने के अंदर ही ब्रेथ एनालाइजर मंगवाया और वकील का अल्कोहल टेस्ट कर दिया। टेस्ट के बाद रीडिंग 27 रिकॉर्ड की गई। आपको बता दें कि कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने के लिए अल्कोहल की हद 30 तक दुरुस्त मानी जाती है, यानी जायज़ मानी जाती है, और वकील की रीडिंग 27 आई थी। ताहम पुलिस ने इस बात पर सख्त एतराज़ किया कि एक कानून पेशा शख्स शराब के नशे में पुलिस स्टेशन कैसे आ सकता है। पुलिस के सख्त रवैये और वकील की तलाशी लेने के अमल ने वहां मौजूद दीगर वकला को मुश्तइल कर दिया। इस वाक़े की खबर फैलते ही बड़ी तादाद में वकला पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने शदीद एहतजाज दर्ज करवाया। वकला का कहना है कि पुलिस ने जानबूझकर वकील को हरासा किया और उनकी इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाई। नल्लाकुंडा पुलिस ने मुखफ़िल मकानात में सरखे में मुलविस एक बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार करके 50 लाख रुपये नकद रकम, 250 ग्राम चांदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। सिकंदराबाद के नल्लाकुंडा इलाके में चोरी की संगीन वारदातों का मुअम्मा हल कर लिया गया है। नल्लाकुंडा पुलिस ने मुखफ़िल मकानात को अपना निशाना बनाते हुए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली एक बैंड रियासती टोली को गिरफ्तार किया है। डीसीपी रक्षिता कृष्णमूर्ति ने मीडिया को बताया कि मुलजिमीन की शिनाख्त अजय महावीर और उसके साथियों के तौर पर की गई है। ये इंतहाई शातिराना ढंग से सरखे की वारदातें अंजाम दे रहे थे। उन्हीं मकानात में चोरी की जा रही थी जहां ताले लगे होते थे। मुलजिमीन के कब्जे से 50 लाख रुपये नकद रकम, 250 ग्राम चांदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। पंजागुट्टा सीआई रामकृष्ण ने सिंगर मंगली और एडवोकेट सुब्बाराव के तनाज़े पर वाज़ेह किया कि इस मामले में किसी भी किस्म के माली घपले की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। सिंगर मंगली और एडवोकेट सुब्बाराव के दरमियान कशीदगी के बाद पंजागुट्टा के सीआई रामकृष्ण ने मीडिया से बात करते हुए सूरत हाल वाज़ेह की। पुलिस के मुताबिक अब तक इस मामले में किसी भी किस्म के माली घपले या फिर फाइनेंशियल स्कैम की शिकायत मौसूल नहीं हुई। सीआई ने वाज़ेह किया कि मुबैना मुतासरीन में से कोई भी पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नहीं आता और न ही कोई मालियाती फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई मुकदमा सिर्फ इस शिकायत पर दर्ज किया गया था कि गुलकारा मंगली ने एडवोकेट सुब्बाराव को धमकियां दी हैं। जब पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही थी तो फिर गुलकारा ने भी एडवोकेट सुब्बाराव के खिलाफ एक जवाबी शिकायत दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट्स कहती है कि जब केस की तहकीकात जारी थी, एडवोकेट सुब्बाराव आज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। ताहम सूरत हाल स्टेशन हाउस ऑफिसर के रवैये में तब्दीली महसूस करने के बाद यकसर बदल गई। पुलिस फिलहाल दोनों जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत का जायजा ले रही है और कानून के मुताबिक कार्रवाई की यकीन दहानी कराई गई है। అన్ని కావాలని అడిగి సార్ మీరు సుబ్బు ఫిర్యాదు మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు, మంగ్లీ ఫిర్యాదు మీద ఎలాంటి చర్యలు తీసుకున్నారు, ఇప్పటి వరకు జరిగింది ఏంటి, ఎవరైనా ఎవిడెన్స్ సమర్పించారా? సుబ్బారావు గారు వారం రోజుల క్రితం మాకు పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కొంతమంది వ్యక్తులు అతన్ని బెదిరించారని చెప్పి, మధు తదితరులు బెదిరించారని చెప్పి, దాంట్లో మంగ్లీ అని చెప్పేసి ఒక సెలబ్రిటీ వాళ్ళ తమ్ముడు ఉన్నారని చెప్పేసి దాంట్లో పర్టికులర్ గా ఆయన మెన్షన్ చేశారు. रियासती वजीर सीता अक्का ने बीआरएस के सोशल मीडिया अकाउंट से उनके खिलाफ बेबुनियाद कहानियां और मन घड़त इल्जामात वायरल करने के बाद बीआरएस के सरबराह व साबिक वज़ीर आला केसीआर को नोटिस रवाना किया है।
तफसीलात के मुताबिक मोबाइल फोन्स की तकसीम के हवाले से लगाए गए इल्जामात पर रियासती वज़ीर सीता अक्का ने वजाहत पेश करते हुए कहा कि आंगनवाड़ी कारकुनान को मोबाइल फोन्स की तकसीम में कोई बेज़ाब्तगी नहीं हुई। ये तमाम अमल मरकजी हुकूमत की जारी करदा हिदायत और गाइडलाइंस के ऐन मुताबिक मुकम्मल किया गया। उन्होंने चैलेंज किया कि BRS लीडर्स हक़ाइक़ को मस्क करके अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। सीता अक्का का कहना है कि BRS के लोग उनके खिलाफ सिर्फ इसीलिए झूठे इल्जामात लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने असेंबली की कार्रवाई के दौरान KTR को आड़े हाथों लेते हुए उनकी नाकामियों को बेनकाब किया था। असेंबली में हक़ाइक़ का सामना करने के बजाय अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर उनकी साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सीता अक्का के मुताबिक उन्होंने BRS के सरबराह KCR को नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है। सीता अक्का ने वाज़ेह किया कि वो इस तरह की सस्ती सियासत से खौफज़दा नहीं होंगी। रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के हल्के इंतखाब कुप्पम में राशन के चावल की स्मगलिंग का बड़ा पर्दाफाश। पुलिस ने 4 टन चावल बरामद किए। तफसीलात के मुताबिक रियासत आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के हल्के इंतखाब कुप्पम में गरीबों के लिए फराहम किए जाने वाले राशन के चावल के गैर कानूनी स्मगलिंग करने वाले रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। वज़ीर आला के अपने ही हल्के में राशन के चावल की गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के इंकशाफ ने इंतज़ामिया को हिला कर रख दिया। पुलिस ने भारी मकदार में चावल जब्त करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद की तलाश शुरू कर दी है। बताया जाता है कि पुलिस ने गोथरलापल्ली के करीब एक मकान पर अचानक छापा मारा। खुफिया इत्तला पर की गई इस कार्रवाई में बड़े पैमाने पर 4 टन राशन का चावल बरामद हुआ, जिसे छोटे छोटे बोरियों से निकालकर बड़ी बोरियों में भरा गया था। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक टेम्पो भी जब्त की है। पुलिस हुकाम ने कहा है कि इसमें मुलव्विस अफराद की शिनाख्त की जा रही है और पुलिस ने यह भी वाज़ेह किया है कि जो भी शख्स ऐसे गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया जाए उसके खिलाफ कानून के तहत इंतहाई सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरलापल्ली खुदकुशी मामले में नया मोड़। मुतवफ़िया सॉफ्टवेयर इंजीनियर के शौहर सुरेंद्र रेड्डी ने अपने ही ससुराल वालों पर संगीन इल्जामात आयद किए। चरलापल्ली इलाके में 3 माह कबल पेश आने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजया रेड्डी और उनके 2 मासूम बच्चों की खुदकुशी के वाक़े में एक सनसनीखेज मोड़ आया है। विजया रेड्डी के शौहर सुरेंद्र रेड्डी ने अब अपनी खामोशी तोड़ते हुए अपने ही ससुराल वालों पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। आपको याद दिला दें कि 3 महीने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर विजया रेड्डी ने अपने 2 बच्चों के साथ जिंदगी का खात्मा किया था। पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई थी। अब इस मामले में विजया के शौहर सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस से रुजू होकर सनसनीखेज इंकशाफात किए। उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की। सुरेंद्र रेड्डी का कहना है कि उनकी बीवी और बच्चे बुज़दिल नहीं थे कि मामूली बात पर खुदकुशी कर लेते, बल्कि उन्हें विजया के घर वालों की जानिब से इस इंतहा तक पहुंचने पर मजबूर किया गया। सुरेंद्र रेड्डी ने अपने ससुराल वालों पर संगीन इल्जामात आयद किए और कहा कि महज जायदाद के लालच में आकर उनके ससुराली रिश्तेदारों ने उनकी अहलिया और बच्चों को जान देने पर मजबूर किया। सुरेंद्र रेड्डी का कहना है कि उनके ससुराल वाले गुज़िश्ता कई माह से जायदाद के तनाज़े को लेकर उन्हें हरासा कर रहे थे, जिसकी वजह से विजया शदीद ज़हनी अज़ियत का शिकार थी। सुरेंद्र रेड्डी ने पुलिस को दी गई दरख्वास्त में मुतालबा किया है कि वो इस मामले की असरनौ तहक़ीक़ात करते हुए उनकी सास और ब्रदर निस्बती के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जगतियाल कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने MLA संजय कुमार पर पार्टी के पुराने और वफादार कारकुनों को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। जगतियाल कांग्रेस कायदीन के दरमियान पाए जा रहे इख्तलाफात एक बार फिर मंजर आम पर आए हैं। कांग्रेस लीडर्स ने MLA संजय कुमार पर पार्टी के पुराने और वफादार कारकुनान को नजरअंदाज करने का इल्जाम आयद किया है। बताया जाता है कि कुछ कायदीन ने MLA के रवैये के खिलाफ बगावत कर दी है। कल्पेशार की सबसे बड़ी वजह हाल ही में मुनक्किद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का अमल है। नाराज लीडर्स का कहना है कि बल्दिया के अमल में सीनियर कांग्रेसियों के साथ नाइंसाफी की गई है। तरजीह उन लोगों को दी जा रही है जो हाल ही में
बीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। एमएलए संजय कुमार का रवैया आमिराना है और वो मुखलस कारकुनान को जलील कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स के एक वफ्द ने वजीर आला से मुलाकात करने का वक्त मांगा है। बताया जाता है कि जिले सियासत के हलकों में ये अफवाह गर्म है कि एमएलए संजय कुमार ने अपने सियासी असर व सुख का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेसी लीडर्स को वजीर आला से मुलाकात करने से रोक दिया। जगतियाल में पुराने कांग्रेस कायदीन का नए कांग्रेस कायदीन के साथ मुकाबला हो रहा है और ये जंग अब पार्टी हाईकमान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। साबिक वजीर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और समाजी कारकुन ने गन पार्क पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन के लिए ज़ेली कोटा शामिल करने का मुतालबा किया है। शहर हैदराबाद के गन पार्क में साबिक वज़रा और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल के अंदर बीसी ख़वातीन के लिए अलहदा सब कोटा फराहम करने का मुतालबा किया। साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ की क़यादत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं और समाजी कारकुनान ने यादगार शोहदा पर धरना दिया। एहतजाज का बुनियादी मकसद मरकज़ी हुकूमत की जानिब से लाए गए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल में पसमानदा तबक़ात की ख़वातीन के लिए सब कोटा शामिल करने का मुतालबा करना था। एहतजाज में तेलंगाना कानून साज कौंसिल के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मधुसूदन चारी, साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव, बीसी जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन जाजुला श्रीनिवास गौड़ और गजा कृष्णा समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। साबिक वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़ ने इस मौके पर कहा कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना तभी मुमकिन है जब मुआशरे के हर तबके को नुमाइंदगी मिले। बीसी ख़वातीन के लिए मखसूस कोटे के बगैर ये बिल अधूरा है और ये उनके सियासी हुकूक़ की हक़ तलफ़ी होगी। बीआरएस रहनुमा हरीश राव ने चने की खरीदारी रोकने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कोटा खत्म होने का बहाना बनाकर किसानों को परेशान करना नाइंसाफी है। बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर हरीश राव ने पीर को संगारेड्डी जिले के सदाशिवपेट के रईतु सेवा केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने चने की फसल फरोख्त करने के लिए आए हुए किसानों से मुलाकात की। मरकज पर किसानों की लंबी कतारें और फसल के ढेर को देखकर हरीश राव ने हुकाम और हुकूमत के रवैये पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। हरीश राव ने कहा कि किसान बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी मेहनत की कमाई यानी फसल लेकर खरीदारी मराकज पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां उन्हें ये कहकर वापस भेजा जा रहा है कि खरीदारी का कोटा खत्म हो चुका है। साबिक वजीर ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया और कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि रियासत का किसान अपनी फसल बेचने के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर किसान ने फसल उगाई है तो हुकूमत उसे खरीदने से इनकार कैसे कर सकती है। जापान के शहर फुजीसावा में मस्जिद की तामीर के खिलाफ हजारों अफराद का एहतजाजियों ने मस्जिद की तामीर को तारीखी शिंटो इबादतगाह की तौहीन और इश्तियाल अंगेज़ी करार दिया। जापान के साहिली शहर फुजीसावा की सड़कों पर हजारों की तादाद में जापानी शहरियों ने एहतजाज दर्ज करवाया। मुजाहिरीन ने मस्जिद की तामीर के खिलाफ एहतजाज करते हुए मस्जिद का हजम ज्यादा होने पर एतराज़ किया। उनका दावा है कि मुजव्वज़ा मस्जिद करीबी बाग़ क़दीम और मुक़द्दस शिंटो मज़ार से कहीं ज्यादा बड़ी और ऊंची होगी, जिसे वो अपनी मजहबी रिवायत के खिलाफ एक इश्तियाल अंगेज कदम करार दे रहे हैं। मुजाहिरीन का गुस्सा सिर्फ मस्जिद की तामीर तक महदूद नहीं था। एहतजाज करने वाले अफराद ने कहा कि वो अपने इलाके में किसी भी मस्जिद या मुस्लिम कब्रिस्तान की तामीर के हक में नहीं है। वो अपनी जापानी शनाख्त और पुरअमन माहौल को बरकरार रखना चाहते हैं। एहतजाजियों के मुताबिक दुनिया भर में एक ही तरीक़ेकार अपनाया जाता है। पहले एक मस्जिद तामीर की जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके पर गलबा हासिल करके अपनी मखसूस शनाख्त मुसल्लत कर दी जाती है और वो नहीं चाहते कि जापान में भी यही तरीक़ेकार अपनाया जाए। जापान में हालिया बरसों के दौरान गैर मुल्की तारिकीन वतन और मुस्लिम आबादी में इजाफा देखने में आया है, जिसके बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मसाजिद की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ताहम फुजीसावा जैसे शहरों में मुकामी आबादी उसे अपनी सकाफती यलगार के तौर पर देख रही है, जो कि जापानी हुकाम के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है।
कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर जिले मुर्शिदाबाद को नजरअंदाज करने पर नुक्ताचीनी की। कहा, अगर मुर्शिदाबाद को उसका हक नहीं मिला तो चक्का जाम करके हुकूमत को जगाने का काम किया जाएगा। मगरबी बंगाल के जिले मुर्शिदाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुकामी मसाइल और मुसलमानों के आईनी हुकूक पर खुलकर बात की। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुर्शिदाबाद की आवाम अब खामोश नहीं रहेगी। उन्होंने मुर्शिदाबाद की मेहनत कश ख़वातीन का जिक्र करते हुए कहा कि जो माएँ और बहनें बीड़ियाँ बनाकर अपना गुजर बसर करती हैं, उनका इस्तेसाल अब बंद होना चाहिए। सदर मजलिस ने ऐलान किया कि उनकी जमात बीड़ी मजदूरों के लिए कम अज़ कम उजरत की पॉलिसी नाफिज करने के लिए जद्दोजहद करेगी ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा सिला मिल सके। कलकत्ता हाई कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला देते हुए सरबराह मजलिस ने कहा कि गुज़िश्ता साल अदालत ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट मंसूख किए, जिनमें से 3.5 लाख सर्टिफिकेट मुसलमानों के थे। ये उनके तालीमी और माशी मुस्तकबिल पर एक कारी ज़रब है। बैरिस्टर ओवैसी ने मगरबी बंगाल हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की तमाम तर तरक्की सिर्फ कोलकाता तक महदूद है और मुर्शिदाबाद जैसे सरहदी अजला को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने ऐलान किया कि अगर मुर्शिदाबाद को उसका हक नहीं मिला तो वो कोलकाता की सड़कों पर निकलेंगे और वहां अवाम के साथ चक्का जाम करके हुकूमत को जगाने का काम किया जाएगा। बुजुर्गों, आज मजलिस आपसे वादा कर रही है कि रघुनाथगंज से आप इमरान सोलंकी को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। इंशाअल्लाह ताला जो हमारी माँ और बहनें बीड़ी बनाती हैं, मिनिमम वेतन उनके ऊपर लागू किया जाएगा। 1000 बीड़ी पर 195 रुपये मिलना, ये कौन सी इंसाफ की बात है। मजलिस इसको खत्म करेगी। और यहाँ पर हमारे जो इमरान सोलंकी के खिलाफ टीएमसी के उम्मीदवार हैं अख्तरुज़्ज़मा साहब, ये तो बता दो, पिछले साल 5 लाख ओबीसी का सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाई कोर्ट ने कैंसल कर दिया। 3.5 लाख क्या सर्टिफिकेट मुस्लिम समाज के थे। बताओ, हमारे बच्चों को स्कूल और एजुकेशन में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट हाई कोर्ट ने कैंसल कर दिया। और ममता बनर्जी के जबान पर है, ओवैसी आएगा तो वोट कट जाएगा। आप बताइए, नाइंसाफी तुम कर रहे हो, बीजेपी को तुम मजबूत कर रहे हो और आरएसएस को सर्टिफिकेट तुम देते हो और तुम हमसे पूछते हो कि वोट लेने क्यों आए। ममता बनर्जी और टीएमसी, कांग्रेस और मोदी, ये जान लो वो डराने के दिन अब खत्म हो चुके हैं। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। मजलिस बंगाल में कमजोर और मजलूम समाज को उनकी लीडरशिप बनाकर ही दम लेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप वहीं पर आप देख लीजिए कि क्या क्या यहां पर ये आपका वेस्ट बंगाल में जितना डेवलपमेंट होता है सिर्फ कोलकाता के अतराफ में होता है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला ममता बनर्जी पर अक्सरियती समाज को डराने का इल्जाम लगाया है और अवाम को यकीन दिलाया है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है। भोलपुर में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ीर आला ममता बनर्जी को तनकीद का निशाना बनाया। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर अक्सरियती समाज को डराने का इल्जाम लगाते हुए कई सवालात खड़े किए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अक्सरियती तबके को डराने की कोशिश कर रही है। रियासत में अमन और अमान की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने मजहबी त्योहारों के हवाले से ममता हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। अमित शाह ने अवाम को यकीन दिलाया कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मरकज में नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली एक मजबूत हुकूमत मौजूद है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में बीजेपी के इक़्तिदार के साथ ही खुशहाली और अमन का दौर शुरू हो जाएगा। दुनिया भर के मुसलमानों के क़िबले और मुक़द्दस तरीन मुकाम खाने काबा की देखभाल और मरम्मत का बाबरकत काम शुरू कर दिया गया। पूरे अर्ज़ पर मुसलमानों की अक़ीदतों का महवर खाना काबा है। उसकी खूबसूरती और पायदारी को बरकरार रखने के लिए
सऊदी हुकाम ने बाकायदा देखभाल के कामों का आगाज कर दिया है। ये अमल हरमैन शरीफैन के उमूर की निगरानी करने वाले जनरल अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी अंजाम दिया जा रहा है। इस मरम्मती काम का मकसद काबा शरीफ के पत्थरों, छत और दीगर तामीराती अज्जा को मौसमी असरात से महफूज रखना और उन्हें उनकी असल और शानदार हालत में बरकरार रखना है। माहिरीन की टीमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और आला मियार का मवाद इस्तेमाल कर रही हैं। इस दौरान काबा शरीफ की छत की सफाई, दरारों की भराई और संगमरमर की पॉलिश समेत तमाम कामों पर तवज्जो दी जा रही है। कामों के दौरान ज़ायरीन और तवाफ करने वालों की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ को भी यकीनी बनाया जा रहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।